ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ? सच्चाई है वो सबके सामने लाए और चाहे उसके लिए मीडिया को कुछ भी करना पड़े। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ? दिल्ली के मुद्दे जो है वो पूरा दिल्ली का तो बिल्कुल एकदम खराब हो गया। गली गली में जो है वो वेंडर बाहर खड़े हैं, रोड का कोई बुरा हाल है, रोड टूटी पड़ी है, उनका कुछ देखने वाला नहीं है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੈਨਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਐਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੋਹਫੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। तो आपका चलेगा कैसे? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली खत्म कर दी, बुरी तरह से खत्म कर दी टोटल। इंस्टा जो है अच्छी चीज के लिए बनना चाहिए था, बना था, लेकिन वो नेगेटिव जा रहा है। और जो वो परोस रहा है ना, वो इतना गंद परोस रहा है ना, आप कोई भी कंटेंट उठा लीजिए इसमें से, सब फेक। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? Punjab is the best place. We get a lot of good food, good milk, good water. People are good. They give you respect. Delhi people are selfish. They are concerned about themselves. ਵੂਮਨਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੱਲੀ ਸਹੀ ਹੈ? Delhi is okay. I don't feel there is any problem unless you are not safe yourself. You have to be careful about yourself. ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? Media is totally taken by the Modi government, and I don't believe in the media because they speak whatever the government wants. ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਚਹਿਲ। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵੇਗਾ ਜੋ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹਲੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? दीपक, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं यहाँ MHA में हूँ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ, यहीं रहता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? मीडिया देखो, कुछ लोग, हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग है। कुछ इसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ इसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं। अगर मीडिया अच्छा दिखाए तो सभी लोग अच्छा सोचेंगे। अगर कुछ कई बार मीडिया कईयों के फेवर में दिखाता है तो उसमें मीडिया की नेगेटिव्स है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ? हम चाहते हैं कि मीडिया जो भी है क्लियरिटी सबके सामने लाए और अच्छी जो उसकी नीचे से मतलब जो उसके सच्चाई है वो सबके सामने लाए और चाहे उसके लिए मीडिया को कुछ भी करना पड़े तो वो लाना अच्छा रहता है। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? इंसानियत सबसे पहले तो इंसानियत है, बाकी चीज तो सब चीज बाद में है, लेकिन इंसानियत बहुत बड़ा मोहरा है और इंसानियत ही ऐसा है जो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਨੇ ਉਹ? वो हर किसी की अपनी अपनी मेंटलिटी है। अगर कोई समझा ही सकता है उन्हें, बाकी मेंटलिटी हर किसी की है। जो वो लोगों की थिंकिंग है वो अपने आप सोचे और अपने आप उनकी जो भी है। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम जीव लाल है। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ, 50 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਦਲੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ? दिल्ली में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, करप्शन बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, पॉल्यूटेड है। ये 50 साल में देखा हमने। ਕੀ ਚੇਂजेस ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ? ये साफ सुथरा रहे, करप्शन खत्म हो जाए, बच्चों को रोजगार मिल जाए और यही होना चाहिए दिल्ली राजधानी। अब देखो करप्शन का मुद्दा है, करप्शन तो कम हो ही नहीं रही। करप्शन के मुद्दे पे सरकार आई थी, करप्शन तो कम हुआ नहीं, जी। करप्शन तो और बढ़ गया।
ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ अब मीडिया तो सरकार के अंडर होती, जैसे जैसे सरकार बोलेगा वैसे वैसे करेगा। अब उन्होंने काम धंधा करना है। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ बेरोजगारी का, करप्शन का और साफ सुथरे के बारे में देखना चाहिए। मीडिया को भी बताना चाहिए। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ये तो सरकार को देखने चाहिए। लोग काफी परेशान है मिलावटी से। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ संदीप बंसल। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ हाँ, बॉर्न एंड बॉर्डर दिल्ली में ही है। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ हमारा मार्बल का काम है। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ मीडिया का रोल आजकल सही नहीं है। मतलब जो है वो ये समझते हैं कि भाई अपनी चीजों को सारी को सही से बताना चाहिए। जो चीजें अब जिसकी कोई अच्छी बात हो वो तो बताई जाए। खाली ये मीडिया में खाली ये यहाँ वो मौत हो गई, यहाँ पर ये रेप हो गया, यहाँ ये हो गया, क्रिएटिविटी में तो कोई वो है नहीं। अब वो अपना जो है वो किसी ने अच्छा काम किया वो बताओ, किसी ने कोई अच्छी नई तकनीक लेके आया, कोई वो है तो वो लोगों को प्रोत्साहन मिले। ये नहीं कि भाई ये जो है वो आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ ये हो गया, यहाँ हो गया, उसी को बढ़ा बढ़ा के उसी को बताया जाए। आदमी के दिमाग में भी वो बहुत जाता है उसका भी। अगर हम तो पेपर को भी जो है वो ये समझते हैं कि पेपर में भी जो है वो अच्छी नीड आनी चाहिए। कि ये नहीं कि भाई जो है वो सुबह सुबह पेपर पढ़ने बैठ जाओ, वहां पर देखो उसके अंदर जो है वो सारा कि इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, सब बातें, ये सब अच्छा नहीं है। मतलब जो है समाज में जो अच्छा हो रहा है, जिसने कोई अच्छा काम किया है उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए और उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, जिससे कि जो है वो आगे के लोग वो बच्चों को भी वो मिले। अब कोई बच्चा जो है वो क्यों न्यूज़पेपर पढ़ेगा, किस लिए इतना बड़ा न्यूज़पेपर का खाली ऐड के लिए, खाली मतलब जो है उसके अंदर बस वो ऐड देंगे ज्वेलरी वाले और ये और वो गाड़ी वाले और ये सब चीजें, ये सब भौतिक चीजें हैं। वो मतलब समाज को सही बनाना है। वैसे ही सोशल मीडिया इतना वो हो गया, उसकी वजह से लोगों को इतना असर पड़ रहा है, बच्चों को। अभी तो हमारे तो अभी एक ग्रुप के अंदर हमने तो ये कराया कि भाई सारे सोशल मीडिया को बिल्कुल बाहर कर दो। बच्चे जो है वो लेके मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, वो लेके रहते हैं पहले। मतलब इन चीजों को मतलब कोई अपने समाज को संभालना वो भी तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों की। वो चीज होनी जरूरी है। वो कोई मीडिया भी नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, खाली बस उनको बस पैसा चाहिए बस। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੈਨਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਐਡ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ ਤੋਹਫੇ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ तो आपका चलेगा कैसे? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ बात ये है कि सबको जो है वो श्वेता सिंह बनना है। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ आपको जो है बढ़िया है। हम तो ये चाहेंगे आप श्वेता सिंह से भी ऊपर जाओ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ दिल्ली के मुद्दे जो है वो पूरा दिल्ली का तो बिल्कुल एकदम खराब हो गया। दिल्ली में तो हम यहाँ पर हम रजौरी गार्डन रहते हैं, हम यहाँ आए हैं। ये जगह जो है वो भाई एम्बेसी एरिया है, बढ़िया एरिया है। मतलब यहाँ का जो मतलब मेंटेनेंस है और सब चीजें हैं सब बहुत बढ़िया है। अब वो चीज वहां पर भी होनी चाहिए ना। हर एक आदमी वहां पर जो है वो सारा झुग्गी बस्ती बसा दिया। वो मतलब जो है वो गली गली में जो है वो वेंडर बाहर खड़े हैं, रोड का कोई बुरा हाल है, रोड टूटी पड़ी है, उनका कुछ देखने वाला नहीं है। मतलब जो है वो कोई चीज जो अब एक कॉलोनी बना रहे हो तो कॉलोनी के अंदर लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, वो होना चाहिए बच्चों की क्रिएटिविटी के लिए। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ अब देखो अब करती है सरकार जो है वो, क्योंकि अब इतने साल से तो हम यही देख रहे हैं कि भाई सरकारों ने जो है वो अपना उल्लू सीधा करा है। अब जो है वो भाई जो जगह बनना चाहिए हमारे वहां पर रजौरी गार्डन के अंदर जो है वो इंडिया हैबिटेट सेंटर जो है वो बनाने के लिए इतनी बड़ी जगह है। उस जगह को जो है वो उसको ये टेंट माफिया वालों को उनको दे रखा है, उनसे पैसे ले रहे हैं। तो ये क्या तरीका है? उस जगह को डेवलप करो ना, उसका पैसा लगाओ, उसकी जगह पे पैसा लगाओ, वो लोगों के क्रिएटिविटी लाएगी। अब बच्चे जो है वो अगर उनके पास जो है वो कोई क्रिएटिव चीज करने का टाइम मतलब उनको निकालना उसके लिए जगह ही नहीं है। उनको फिर वही चीज दिखाई देती है इजी मींस मोबाइल। वो तो अच्छी बात नहीं है ना। आगे के लिए जो है वो हमारा ही समाज खराब होगा ना। वो सब चीजें को अगर तुम बढ़ावा नहीं दोगे
तुम पैसा कमा के भौतिक उसमें कितना कर लोगे, ये वाली बात है। तो वो सब चीजें जरूरी हैं, योगा भी जरूरी है, ये सब चीजें आदमी को जिंदगी में सब चीजें जरूरी है ना, उससे आदमी सही रहता है मानसिक। रोज एक्सरसाइज करते हो डेली आके? हाँ, इधर रोज नहीं आते, मतलब जो है वो यहाँ तो कभी कभी आते हैं, मतलब हफ्ते में 1-2-3 दिन आ जाते हैं, लेकिन वैसे जो है वो ये जगह आके मतलब वो फाउंटेन चल रहा है, हाँ सगुन वाला। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਮੈਮ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? रश्मि रश्मि ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? बुटीक चलाती हूँ और हाउस वाइफ भी हूँ, सब कुछ हूँ, हाउस मेकर हूँ, होम मेकर हूँ। और मीडिया के लिए तो मेरे को यही कहना है कि हर चीज़ को इतना एग्जैजरेट करके दिखाते हैं जो कि नहीं दिखाना चाहिए। मतलब नेगेटिविटी को ज़्यादा परोसो मत, थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखाओ, कहीं तो कुछ क्रिएटिविटी दिखाओ। अब न्यूज़पेपर हम खोलते हैं, जो सेम चीज़ इन्होंने बोली अभी कि सिर्फ क्राइम स्टोरीज होती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि ये हुआ वो हुआ। फिर हमारे दिल्ली का मेन मुद्दा क्या है कि मिक्स ब्रीड है, तरह तरह के लोग हैं और सब अपने आप को ना जैसे फ्रंट पे लेवल पे हो इस तरह से ट्रीट करते हैं कि हम ही सब कुछ है। मतलब एक्सेप्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। रोड रेज इतना होता है, जरा सा कुछ बोल दो, इतना लोग इतनी हाइपर हो जाते हैं कि तुम कौन होते हो बोलने वाले, हमें हम जो मर्जी करें। तो ये चीज ना इतना इनसिक्योरिटी फील कराती है दिल्ली में। और वुमेन्स आर नॉट सेफ इन दिल्ली, लिटरली बिल्कुल भी सेफ नहीं किसी भी टाइम। क्राइम कितना कह थे? बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात है, स्टॉकिंग इतनी जबरदस्त है। आप फॉरेन कंट्री जाए, स्टॉकिंग इज एन ऑफेंस देयर, लेकिन यहाँ तो स्टॉकिंग नॉर्मल चीज है। एक लड़की को पहनने के लिए आजादी नहीं है कुछ भी, वो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकती। हर समय उसको जज करना वो गलत है। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਧਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि दिखता जो है वो दिखाते नहीं है, वो जो होता है वो दिखता नहीं है। और जो मेंटालिटी है वो तो हम लोग महसूस करते हैं ना। आज मेरी डॉटर है, शी इज इन कॉलेज, तो वो जाती है तो वो चाहती है कि शॉर्ट्स पहनने को, और मैं कहा नहीं पहनना बेटा, जो पहनना है गाड़ी से जाओ, मेट्रो या रिक्शा से आप ट्रेवल नहीं करोगे इस चीज को पहन के। सब लोग इतनी गंदी निगाहों से देखते हैं। और जो दिल्ली में ई रिक्शा कल्चर आया है, इसने तो दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। मतलब गलती उनकी होती, कहीं भी बीच में रोक लेंगे। मतलब मेरे ही रिश्तेदार को इतनी बुरी तरह से मारा उन्होंने, सिर्फ इसलिए कि गाड़ी टच हो गई रिक्शा से, सिर्फ इसलिए कि भाई हमारा एक माफिया है। सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इतना बुरा हाल कर दिया उन्होंने दिल्ली में। बिजनेस तो कुछ रहे नहीं लोगों के पास, काम धंधा है नहीं, ई रिक्शा चला के अपना चलता है, और बहुत बुरा हाल कर रखा है। अब ये जब से अरविंद केजरीवाल था तब से इसने दिल्ली को बिल्कुल खत्म कर दिया। अब जब से ये बीजेपी आई है, इसने फॉरवर्ड किया है, रोड मेंटेन हो रहे हैं, मतलब थोड़ा क्राइम को कम कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं, झुग्गियों को कम कर रहे हैं, उनको बेटर प्लेस दे रहे हैं, जिससे कि क्राइम कम हो। और वो लोग भी समझ रहे हैं कि अब जो सरकार है वो हमारे हित में करेगी, ना कि हमारे लिए ही करेगी सिर्फ, वो सबके लिए, फॉर एवरीवन। जो बीजेपी है, बीजेपी तो खैर बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है, और बीजेपी मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, वो समझती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली खत्म कर दी, बुरी तरह से खत्म कर दी टोटल। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਚੇਂजेस ਆਣ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ? आप मुंबई जाएं, मुंबई में आप 11 o'clock भी रात को बस में ट्रेवल करें तो यू आर वेरी सेफ। वहां गर्दन दबोच लेते हैं तुरंत, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई तुम्हारी लड़की की गलती है, तुम्हारी लड़की ऐसे कपड़े पहन के गई क्यों? वो तो छेड़ेंगे ही, मुंडों का तो काम ही यही होता है छेड़ने का। तो ये कौन सा तरीका हुआ? सबसे पहले तो आप अपने बेटों को समझाएं, बेटियों को ना समझाएं, बेटों को समझाएं कि परवरिश होती क्या है, कि सबको, वुमेन को अगर आप इज्जत नहीं दोगे तो आप दुनिया में किसी भी माँ की पूजा करने लायक नहीं हो। देवी की पूजा का मतलब है पहले औरत को इज्जत दो, चाहे वो माँ है, चाहे बहन है, चाहे बीवी है, चाहे बेटी है, चाहे किसी की भी बेटी है, इज्जत तो दो। इज्जत दोगे तो बदले में तुम्हें इज्जत ही मिलेगी। लेकिन अगर गलत करोगे तो गलत ही होगा ना, फिर क्या होगा, क्राइम ही बढ़ेगा ना। जो आजकल इतने ज्यादा जबरदस्त क्राइम हो रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे हो रहे अबव द लेवल, जो सोचने में भी नहीं आते थे कभी, वो चीजें दिल्ली में अब हो रही है, नॉर्मल है। क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है, सेंसिटिविटी जीरो हो गई लोगों की, कुछ नहीं समझते लोग। अब स्क्रॉल करना लग गए हैं ना, तो मतलब पेशेंस लेवल खत्म हो गया कि जो करना है बस फटाफट करो, निकलो यहाँ से, जो करना है कर। सबर नहीं रहा बिल्कुल भी, पेशेंस लेवल जीरो सबका। एक पर्टिकुलर बंदे को नहीं कह रही, फॉर एवरीवन, चाहे वो मेल है, फीमेल है, मतलब एडल्ट है, यंगस्टर्स हैं, एनीवन, सबका हाल खराब हो गया। मीडिया ने तो सबसे बड़ा करके इंस्टा को तो टोटल बैन करना चाहिए। इंस्टा ने तो सबसे गंदा काम किया है, और सब कुछ फेक है इंस्टा पे, एवरीथिंग इज फेक।
ਪੰਜਾਬ ਚ ਗਏ ਹੋ ਕਦੇ? अभी होकर आई मैं लुधियाना, फर्स्ट टाइम आई वेंट टू पंजाब इन माय लाइफ कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा लुधियाना जाके, मैं बहुत खुश हुई। लुधियाना इज अ वेरी गुड सिटी एंड वेरी प्रॉस्परस सिटी। मैंने वहाँ का साउथ जोन देखा, सारा देखा, मतलब मैं बहुत इंजॉय किया। मॉल रोड गई और सब वहाँ पे मैं स्कॉन को फॉलोअर हूँ और वहाँ पे स्कॉन की रथ यात्रा निकली। मैं मतलब अमेज थी, इतना सुंदर अरेंजमेंट किया जो दिल्ली में भी नहीं होता। पूरे बैरिकेड्स थे और इतना सही से लाइटिंग थी, सारे फ्लाईओवर सजाए हुए थे, इतना ब्यूटीफुल। हजारों में लोग थे, जो ब्यूटीफुली उन्होंने ऑर्गेनाइज किया पंजाब गवर्नमेंट ने, तो कमेंडेबल था। मतलब इतनी खुशी हुई मुझे कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस्कॉन को इतना प्रमोट किया और इतना साफ सुथरा, कमाल का। बहुत एंजॉय किया मैंने। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ 2 शब्द। पंजाब इज ए वेरी प्रॉस्परस स्टेट और वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। खाना बहुत अच्छा है, लोग बड़े प्यार से बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, हेल्पिंग है। वहाँ पे लोग हेल्पिंग है, दिल्ली में हेल्पिंग नहीं है। वहाँ अगर हमने किससे पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाता है तो प्रॉपर बताया गाड़ी रोक के कि आप यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, जबकि जीपीएस था। लेकिन कुछ कुछ लोगों से हेल्प होने में मैनुअली थोड़ा ज्यादा हेल्पफुल होता है। बड़े अच्छे थे, बहुत एंजॉय किया। मतलब दोबारा मैं जाना चाहूंगी पंजाब। अमृतसर में आज तक नहीं गई, मैंने इनको बोला हस्बैंड को कि अमृतसर लेके चलो, बोले नेक्स्ट विजिट अब अमृतसर ही होगी हमारी। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। प्लीज इसको आप टेलीकास्ट कीजिए और इसको थोड़ा सा आगे कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरा फेस मत कीजिए, लेकिन आप व्यूज, मैं चाहती हूँ व्यूज लोगों तक पहुंचे, कि लोगों को पता लगे कि व्हाट इज नेगेटिव, व्हाट इज पॉजिटिव। इंस्टा जो है अच्छी चीज के लिए बनना चाहिए था, बना था, लेकिन वो नेगेटिव जा रहा है। और जो वो परोस रहा है ना, वो इतना गंद परोस रहा है ना। आप कोई भी कंटेंट उठा लीजिए इसमें से, सब फेक है, सब कुछ फेक है। आप उसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। और ये जो फैशन इंडस्ट्री को उन्होंने इतना प्रमोट किया है ना, आप सोचो घर में नहीं है दाने, मतलब बाहर चले बुनाने वाली बात हो गई ना। इतना फैशन प्रमोट करना क्या मतलब है? इसके लिए तो इतने इतने क्राइम हो रहे हैं, क्योंकि लड़कियां फिर आगे निकलती हैं, पैसे के लिए कुछ भी करेंगी। तो आप सोचिए ना, ये सब चीजें तो फिर प्ले करती है ना, हर चीज एक रोल प्ले करती है लाइफ में। हर चीज इंटरलिंक्ड है, कोई भी चीज अकेले नहीं प्ले करती, सब कुछ एक साथ अटैच्ड है। तो थोड़ा सा यही कि ना, इस चीज को थोड़ा बैन कीजिए आप लोगों को। मतलब ये कहिए, या गवर्नमेंट हमारी इस चीज के लिए शुड बी स्ट्रिक्ट, की ना जो भी कंटेंट है आप उसको सर्टिफाइड करवाइए, फिर आप डालिए उसमें, जिससे कि वो चीज सामने लोगों को मिले, तो अच्छी इंस्पिरेशनल हो, स्टोरीबल हो, कि ऐसी चीज हो वो दे। मैं तो यही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? आभा अग्रवाल। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੋ? मैं ਜਾਂ ਕੰਮ? रिटायर्ड हूँ, बैंक ऑफिसर रिटायर्ड हूँ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ मैं ਹੋ? दिल्ली से तो थोड़े थोड़े दिन के लिए आती हूँ, ओनली फॉर 15 डेज या 20 डेज, तो इसलिए आई डोंट नो अबाउट इट टू मच। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦਿੱਲੀ? ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ? नहीं, वैसे तो इट्स गुड, ऐसी बात नहीं है कि थोड़ा पोल्यूशन है और ये सब कुछ तो है ये दिल्ली में, पर वैसे तो ਵਧੀਆ ਹੈ। वैसे ठीक है। हाँ ਵੂਮਨਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैडम, इतना आइडिया ही नहीं है वुमेन की सेफ्टी का। कभी ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 10 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ 10 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਸਫਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ उस बीच तो फेस भी ऐसे- करते होने। अब इस एरिया में तो जैसे मैं रहती हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। गवर्नमेंट किਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ कर रही है ਇੱਥੇ? गवर्नमेंट देखो, एज ए कॉरपोरेशन जो है वो आजकल तो सफाई एनडीएमसी वालों ने बहुत कार्यभार अच्छा संभाला हुआ है, काफी मतलब क्लीनेस कर रहे हैं। ਜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਚੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ? नहीं, आजकल उतनी वो नहीं है जो हमारे टाइम में पहले थी, एक दूसरे के लिए आपस में इमोशनल अटैचमेंट थी, वो सब कुछ है, वो आजकल नहीं देखने को इतनी मिलती है। ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ? मीडिया तो वेरी गुड प्ले कर रहा है, हर चीज को अवेयर कर, हर चीज को बता रहा है कि भाई कोई भी चीज है जो नई वैसे पता ही नहीं चलती थी कि क्या हो रहा है, तो मीडिया ही उस चीज में प्ले रोल कर रहा है कि बस। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? जतिन। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट एग्जाम्स की। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ 'ਚ? मेरे को अभी 3 साल हुए हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ? मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। ਕੀ ਫਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? हरियाणा और दिल्ली में कुछ थोड़ा अंतर है। जैसे दिल्ली के अंदर भाई पोल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा, हरियाणा के कंपैरिजन में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और जो देन यहाँ पे जो है, लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी सारी है आपको, फैसिलिटीज़ भी आपको काफ़ी मिल जाती है, और मेट्रोपॉलिटन शहर भी है, तो ये काफ़ी अंतर है हरियाणा और दिल्ली में। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ?
दिल्ली के मुद्दे बेसिकली जैसे अभी बारिश हो रही है तो जल भराव हो जाता है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देन ट्रैफिक का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप दिल्ली से अगर गुड़गांव जा रहे हो हरियाणा में, तो अगर आप पीक आवर्स में जा रहे हो तो आपको 2 घंटे आराम से लग जाएंगे। देन इसके बाद आपका जो आपका मुद्दा आता है वो पोल्यूशन का भी है कि पोल्यूशन जो सर्दियों में, अभी जैसे सर्दी आने वाली है कुछ समय बाद, तो पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं उससे। जो एजड लोग हैं या फिर जो जिनको कुछ डिजीज वगैरह है, तो ये कुछ मुद्दे हैं दिल्ली के। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ? गवर्नमेंट से यही है कि जो सीवर सिस्टम है उसको अच्छा किया जाए, ताकि जो बारिश के अंदर जो है पानी ना भरे और जो गाड़ियां हैं वो बंद ना हो, और जो पोल्यूशन को कम किया जाए। जो भी स्टेप्स लिए जा रहे, गवर्नमेंट ले भी रही है कुछ स्टेप्स। और इसके बाद जो ट्रैफिक है उसको कैसे कम कर सके, उसके लिए भी गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए। और जो कुछ जैसे अभी कुछ रिसेंट टाइम में जो क्राइम की भी काफ़ी बड़ा है दिल्ली में, जैसे गैंग वार वगैरह हुई है काफ़ी सारी, तो वो भी गवर्नमेंट को जो है कंट्रोल करना चाहिए, ताकि जो दिल्ली के लोग हैं वो सेफ महसूस करें। ਵੂਮਨਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੂਮਨਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਲकुल भी। हाँ, उनका पॉइंट भी काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि वेमेन की सेफ्टी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अगर हमें एक डेवलप्ड नेशन बनाना है तो लेकिन हाँ, जैसे लाइक बसेस के अंदर जो है जो मार्शल्स वगैरह तैनात करे हैं, तो वो एक दिल्ली गवर्नमेंट का काफ़ी सही स्टेप है। लेकिन जो स्नैचिंग हुई, जो चैन स्नैचिंग हुई, और लाइक जो क्राइम्स हुए गवर्नमेंट के जो गर्ल्स के प्रति है, खास करके जो माइनर गर्ल है उनके प्रति क्राइम्स काफ़ी सारे हुए हैं अभी दिल्ली में, तो उससे रिलेटेड ये काफ़ी एक चिंताजनक विषय है, जो कि गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करते हुए और स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि जो विमेन है वो सेफ फील कर सके, वर्क प्लेस पे भी और घर पे भी। ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰ ਗਰਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? इससे रिलेटेड जो है सबसे पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि जो लॉस है वो काफ़ी स्ट्रिजेंट होने चाहिए, ताकि जो पनिशमेंट है वो काफ़ी हार्श हो। और दूसरा जो पेंडिंग केसेस काफ़ी सारे हैं, तो उनकी जो आप फास्ट ट्रैक में करके उनको जो केसेस हैं, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव केसेस होते हैं जो कि पूरी सोसाइटी को एक काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं, तो उनको फास्ट करते हुए उस केस का एक टाइम बाउंड मैनर में उनका पूरा जो है एक तरीके से एक जजमेंट होना चाहिए, ताकि लोग को ये लगे कि हाँ भाई टाइम बाउंड मैनर पे जो भी क्राइम करेगा उसको हार्श से हार्श पनिशमेंट मिलेगी। और लॉज के अंदर अमेंडमेंट टाइम टू टाइम करते रहने चाहिए समय की मांग के अनुसार। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ML Dogra. ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? Right from the childhood, I am in Delhi. My study was in Delhi. And thereafter, I joined the Air Force. I left the Air Force, had been in the various organizations. I had done my coaching course in Patiala and the German. And I had been the coach for the since 82. 82, I was the chief coach of the Indian team in the Asian Games, which was held in Delhi. And 2010 Commonwealth Games, I was one of the venue directors. And I had a big hand in the technical problems to solve during the Commonwealth Games. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? Punjab is the best place. We get a lot of good food, good milk, good water. People are good. They give you respect. Delhi people are selfish. They are concerned about themselves. There are certain sect of the people, those are also concerned about others. But Delhi is a cosmopolitan place, and here everybody is busy in their own job. But of course, the health is one of the important part, which everybody should feel it after facing a lot of problems in the last 3-4 years. And I feel anybody who is concerned about the health will be successful in life. ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ? Delhi the mudde ne ke there should be, during the rain and all, sewerage should be there, good water should be there, pollution should not be there, and the traffic rules and all should be followed by individuals. Lot of damages, dirts and the sewerage, this should be cleaned. ਤੇ ਵੂਮਨਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੱਲੀ ਸਹੀ ਹੈ? Delhi is okay. I don't feel there is any problem unless you are not safe yourself. You have to be careful about yourself. But in Delhi, I don't think there is much problem. I had been right from the childhood here. And now also I am 81-year-old. I am still here. But the people are safe. Unless you are disciplined, you are concerned about your own job. आप अपने में इंटरेस्टेड हो, अपना काम कर रहे हो,
अपने रास्ते आ जा रहे हो तो nobody will trouble you. ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? Media is totally taken by the Modi government, and I don't believe in the media because they speak whatever the government wants. ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮੀਡੀਆ? Media should be independent. They should give the right thing, truthful thing, honest thing. They must keep the people aware of the everything. Awareness क्रिएट करनी चाहिए. मीडिया को सच बोलना चाहिए. लोगों को पता लगना चाहिए क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, क्या ठीक है, क्या गलत है. That's the good thing of the media. But they speak just like Tota, only the whatever the government wants. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਖ ਹੈ ਵੂਮਨ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਗਨ ਚਹਿਲ।